The deadlock between farmers and the centre continues to rage on. But then it has, because nothing has really changed from the month of January. Then why is it that we're talking about it tonight? Because 4 days ago, at a farmers' protest, the police resorted to brutal lathi charge to bring the farmers in control. And a video then emerged of the SDM of Karnal, who was heard making some shocking remarks, ordering the troops to break the heads of any farmer who crosses the barrier. That SDM has now been transferred. But that's not the only side that is adding fuel to this fire, and with its actions flaring up the tension. Now, in a new development, the Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait has sparked a controversy as well. During his address at a Mahapanchayat, the farmer leader said that a big Hindu leader will be killed before UP polls, that the entire strategy of the political parties is to divide in the name of Hindus and Muslims and derail the farm protests and silence them all. Tikait, wanting to use this strategy with such provocative comments, cannot really spell good news either for peaceful protests. Listen in to what he said. सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। From both sides, we are seeing attempts being made to provoke, attempts being made to really add fuel to this entire stir, and taking away from the real issue, which was the contentious farm laws. The deadlock between the farmers and the government is far from over, viewers. The farmers, in fact, are now building up one after the other protest plan against the government. There are Mahapanchayats being held across North Indian states, and a lot more is in the works. In Haryana, Mahapanchayat in Nuh was held after the lathi charge by cops. The farm leaders have asked farmers to prepare for more such protests and stirs. In fact, the Nuh Mahapanchayat laid a roadmap to choke Delhi. On radar of the protesters now is the national capital again, which on its borders has any which way seen relentless protests now for almost a year. Almost a year. And the farmers are now wanting to block the entire Nuh to Mewat route as well. There is also an intent to announce a fresh plan for Uttar Pradesh, a state that goes to poll next year. And the farmers' groups are planning a massive Muzaffarnagar Mahapanchayat, which they are calling everybody to attend. And they're saying a lot more will be done. Provocative comments, large Mahapanchayats and rallies. On the other hand, the centre has been completely silent on it. Individuals chased from Uttar Pradesh to Haryana to Punjab and even Himachal, Uttarakhand, another state that goes to elections, have been left to deal with this. The simple question is that really going to resolve the issue? As the protest itself threatens to become more and more ugly and political in nature, why isn't the central government really trying to hold talks with the farmers? Is that not the only way forward? Since January, there has been no meeting. The laws are in suspension, but the protests aren't. And all of these actions in the last few days is only threatening to derail the entire issue. Let's say good evening to the panelists who are joining me right now. Ghanshyam Tiwari, Samajwadi Party; Vijay Sardana, agriculture economist; Pushpender Singh, president for the Kisan Shakti Sangh; Abhimanyu Kohar, farmer leader, joins me this evening; Mr. R.P. Singh of the BJP with me as well. I want to actually start off with Pushpender Singh. Pushpender Singh ji, इस तरीके के जो कमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा, क्या मतलब? इससे तो और टेंशन बढ़ेगा सब जगह। देखिए तन्वी जी, ये रणनीति जो है भाजपा की, इसको अवगुण जो भी आप कि जब इनके सारे
इन्होंने देने की पहले से ही कोशिश की थी। शुरू में इन्होंने इसको जो है खालिस्तानी बता के खारिज करने की कोशिश की, जो मुस्लिम पाकिस्तानी बता के खारिज करने की कोशिश की। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ राज्यों के जाट लैंड, एक नया शब्द गढ़ दिया यहाँ पर कि जाट लैंड के कुछ लोग आ गए हैं, किसी जाति विशेष के लोग आ गए हैं, उसको कोशिश की। और तरह तरह के जो है इनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बावजूद भी जब भी किसान नहीं हटे, तो अब इनका एक लोकतंत्र के स्थान पे लठ तंत्र इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें इनके अफसर खुद ये कह रहे हैं खुलेआम, अपने जो है मातहतों को, पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि साहब आप जाएं और इनका लठ से सर फोड़ दें, जबकि कोई कानून नहीं कहता कि शांतिपूर्ण बैठे हुए लोगों के ऊपर आप जो है लाठी चला सकते हैं। ये इन्होंने दुर्दशा इस उसकी कर दी है। अब क्योंकि ये भी इनका फेल होने जा रहा है, और 5 तारीख की जो महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में, वो जो है ना भूतो ना भविष्यति, न पहले कभी इतिहास में हुई है, ना शायद भविष्य में हो। इतनी बड़ी महापंचायत वहां होने जा रही है, इससे ये बौखलाए हुए हैं। और अब हमें आशंका है कि जिस प्रकार मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे करवाए गए थे और उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी, इसी तरह का काम ये आगे आने वाले समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके सारे जो अस्त्र हैं वो फेल हो गए हैं। इस आशंका में आदरणीय जो है राकेश टिकैत जी ने ये बयान दिया है, और हमें आशंका है ये करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह, आपको आशंका हो सकती है कि इस तरीके का कुछ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई सबूत नहीं कि ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल आप ऐसी बातें कह के, वो भी इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में जहां हजारों में लोग सुन रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है किसान लीडर्स की तरफ से, आप उनके मन में ये बात बिठा रहे हैं। इसको अलग और भी बहुत तरीकों से कहा जा सकता है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सबको ये याद रखना है कि किसान किसान है, और उसके आगे पीछे की आइडेंटिटी के बारे में कहीं हमको बहकना नहीं है। पर जो शब्द यूज किए गए, दोज आर प्रोवोकेटिव मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह। सर फोड़ने वाले सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव तो वो है। और बार बार दंगे भाजपा ने कराए हैं, सारा देश जानता है, सारा इनका इतिहास है। चाहे वो बाबरी मस्जिद को ढाने का काम किया हो, 2002 के दंगे हो, तमाम दंगों के माध्यम से इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कभी कभी हम लोग भी तो थोड़े होशियार हैं, हमें मालूम है कि ये करने जा रहे हैं, तो हमने पहले ही उसका भंडाफोड़ कर दिया कि ये करेंगे। अब ये कम से कम करते हुए डरेंगे। तो किसी भी प्रपंच में किसान नेता भी होशियार हैं, वो आने वाले नहीं है। और इनके सारे जितने भी ये अलोकतांत्रिक और जो हिटलरशाही और तालिबानी शासन एक तरीके से इन्होंने शुरू कर रखा है हिंदुस्तान के अंदर, इसको फेल करने के लिए किसान मोर्चा तैयार है। और इनके चंगुल में हम नहीं फंसने वाले। अंत में इनको जो है कानून वापस लेने पड़ेंगे, लीगल गारंटी एमएसपी की देनी पड़ेगी। ओके, आरपी सिंह, वेयर इज दिस हेडेड? कहां जा रहे हैं? जनवरी से आज तक एक भी राउंड बातचीत का हुआ नहीं। हुआ ये कि लाठीचार्ज हो गया। देयर वाज अ वीडियो दैट केम आउट वेयर द एसडीएम वाज सेइंग ब्रेक देयर हेड्स। नाउ द फार्मर लीडर्स आर मेकिंग सच काइंड ऑफ कमेंट्स। कोई किसी को खालिस्तानी बुला रहा है तो कोई किसी को तालिबानी बुला रहा है। हाउ आर वी गोइंग टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक मिस्टर सिंह? आपने, बस मैं माफी चाहता हूँ, हिंदी में से बोलूंगा कि मेरे 2 किसान नेता बैठे, थोड़ा सुविधा रहेगी। आपने ये विषय रखा कि सिर फोड़ने की बात की जा रही है। आपने वो विषय नहीं रखा किस प्रकार से अरुण नारायण के कपड़े फाड़कर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो किस्मत अच्छी थी, बच गए, तो नहीं बचते। किस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पे हमला हुआ, किस प्रकार वहां पर ये जो 2 सांसद है, रवनीत बिट्टू और उजाला, और एक उनके विधायक जीरा, कई जनता को जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है। एक पत्रकार उनकी जान बचा लेते हैं तो बच जाते हैं। शायद आज रवनीत बिट्टू हमारे बीच में नहीं होते, कांग्रेस के सांसद है। और ये शब्द जो मैं अगला शब्द बोल रहा हूँ, मेरा शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है कि ये सबके सब खालिस्तानी इन्होंने मेरे पे हमला किया। ये रवनीत बिट्टू शब्द आपके पास तो रिप्ले कर दिए, याद आ जाएगा किसने कहा खालिस्तानी उनके बारे में। ये जो करे सब ठीक, वहां पर के लोग वहां पर एक एडमिशन कैंप लगाते हैं चंडीगढ़ में, उन पे हमला करते हैं। तो ये जो सब करे ठीक, टोल प्लाजा बंद करे, वहां पर शॉवर लेकर, मतलब एक कच्ची लेकर पुलिस पे हमला करे, वो ठीक। पुलिस उसका रिस्पॉन्ड करे तो गलत। उनमें क्या है कि ये कोई राजनीति कर रहे हैं। इनको किसान हित से कोई लेना देना नहीं, किसान हित की बात करनी होती। मैं वापस से बार बार कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, ये पंजाब में जाकर जो वादा कैप्टन साहब ने किया था, उस वादे को पूरा करते। वो था, वादे को पूरा करने की कोशिश करते, वो था कि मैं 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी करूंगा।
जाकर मैं कल चेक कर रहा था, 4526 करोड़ का कर्जा माफी हुआ। 85,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आज भी किसानों के सिर पर है। उस पर कोई चर्चा चिंता नहीं करेगा। गुटखा साहब की कसम खाई थी कैप्टन साहब ने। सच ये है, जाखड़ जो उनके, सुनील जाखड़ जो उनके अध्यक्ष थे, जब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप सिद्धू को दी, मंच से बोला कि कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों को हरियाणा और दिल्ली भेजिए पंजाब से निकालकर, और हम उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं, अब आपने बहुत अच्छा किया। तो दिख रहे राजनीतिक कारण से हो रहा है, बिल्कुल राजनीति कभी करें। और वो इनका वो बयान आप जरा प्ले कर दीजिए ना, जब उन्होंने कहा था हम बक्कर उखाड़ लेंगे, किसने कहा था बक्कर उखाड़ लेंगे? हमने कहा था क्या? कैलाश साहब ने कहा था बक्कर उखाड़ देंगे। क्या मतलब होता बक्कर उखाड़ने होता? सबको जानकारी है। इस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से नीचे नाले में, 20 फुट गहरे नाले में 356 लगभग पुलिस वाले धकेल देकर कर मारे, वो उनको ध्यान में नहीं आता। किस प्रकार वहां पर एक किसान कार्यकर्ता की किस प्रकार वहां पर आग लगाकर जान ली गई, वो ध्यान में नहीं आता। इस प्रकार से बेटियों का रेप होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो ध्यान में नहीं आता। इस प्रकार पत्रकारों पर जंतर मंतर पर हमला होता है, वो ध्यान में नहीं आता। परंतु क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति करनी है, ये नए प्रकार का बवाल लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोई अब इनके पास मुद्दे रहेंगे। पर उनको लोगों का ध्यान बटाने की क्या जरूरत? मिस्टर आरपी सिंह, मिस्टर सिंह, किसानों को लोगों का ध्यान हटाने का, भटकाने का क्या फायदा? वो तो ये टेक्निक तो सरकारें यूज करती हैं। मैं माफी चाहता हूँ, ये आपके लिए होगा ये टेक्निक यूज करना। अब वो दिख रहा है ना, अब पूछिए कोई इनके पास सबूत है? ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि दंगे कराए भाजपा के लोगों ने? जरा एक भी दंगे के अंदर साबित करी। मैं तो आपको डेट बाई डेट बता रहा हूँ। आपको एक बता दीजिए जहां पे किसी दंगे में कोई भाजपा का कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो। और इनको तो राजनीति के लिए पूरी की पूरी वो भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस इनसे बुलवाना चाहती है। माफी चाहता हूँ, एग्जैक्टली वर्बटम वो बोलते हैं जो कांग्रेस बोलना चाहती है। हम बोल सकते हैं सब तो प्रियंका वाड्रा के ट्रैक्टर पर बैठकर, कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर सभाएं कर रहे थे थोड़े दिन पहले राजस्थान के। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप देख लीजिए। ओके एजेंडा है, एजेंडा चलाना है, राजनीति करनी है। और ये मुझसे और एक होगा, मुझसे रखवा लेना कि सबके सब चुनाव में उतरेंगे, चाहे यूपी में चाहे पंजाब में, ये सबका चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी टेक दिस पॉइंट अक्रॉस टू अभिमन्यु कोहर। अभिमन्यु कोहर, अगर आप किसान नेता की तरह नहीं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नेता की तरह बिहेव करेंगे तो सरकार आपसे क्यों बात करेगी फार्म लॉस? देखिए तन्वी जी, आपका एक अच्छा सवाल है। उससे पहले मैं एक ये चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि एक भी दंगा बता दीजिए जिसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब गुजरात दंगा हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गुजरात गए थे तो उन्होंने आज के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आप अपना राजधर्म निभाइए। ये चीजें जो उन्होंने ये पंक्ति बोली थी अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही थी और आज भी ये बहुत कुछ साबित कर देती है। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ उस समय संगीत सोम कौन थे, इनका क्या रोल था उस पूरे दंगे में, ये जरा ये बताएं। तो इस पार्टी का जो बीजेपी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ी धैर्य रखिए, हैव सम पेशेंस, थोड़ा आप थोड़ा धैर्य रखिए। इतनी नैतिकता, इतनी पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, 1 मिनट मिस्टर सिंह, आरपी सिंह, आपने अपना पॉइंट रख दिया, आपने बोल दिया कि कोर्ट का जवाब आ गया इन केसेस में। अब अभिमन्यु कोहर अपनी बात खत्म करिए। हाँ, आप देखिए, पहली बात इनको ये बताइए, हम बीच में नहीं बोल रहे थे, हमें ये चीज पसंद भी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई हम, अरे आप थोड़ी देर चुप रहिए। पूरी दुनिया में सच बोलने का सारे फैक्ट लेने का I request you, RP Singh, I request you, please allow the other side to finish. I will come back to you and you can make your comments then. Yes, अभिमन्यु कोहर। दूसरी बात जो आपने कही कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है तो सरकार बात कैसे करेगी। देखिए, हमारा मूवमेंट पहले दिन से नॉन पॉलिटिकल है। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को अपने मंच पे नहीं आने दिया, माइक नहीं दिया। जब किसान संसद हुआ, पूरे देश ने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया था किस तरीके से बार बार विपक्ष के सांसद आए, लेकिन ना हमने उनको मंच दिया, ना हमने उनको माइक दिया, ना हमने उनको बोलने दिया। वो चुपचाप वहां पे आके बैठ के हमारी बातें सुन के वापस चले गए। अब जिस तरीके से मिशन बंगाल किया गया और अब मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड की तैयारी की जा रही है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है
क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ एक भाषा समझती है और वो है चुनाव की भाषा, कुर्सी की भाषा। हमने तो मिशन यूपी के तहत मात्र इतना कहा है कि यूपी के गांव गांव में आंदोलन को लेके जाएंगे। इस मोदी सरकार की पिछले 7 सालों से जो विफलताएं हैं, जो किसान विरोधी पॉलिसीज हैं, उनको जनता तक लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था 2017 में कि कर्ज माफी करेंगे। क्या कर्ज माफी हुई? आज भी गन्ना मिलों पे किसानों का 12,000 करोड़ से अधिक रुपया बकाया है। सरकार ने कहा था कि 15 दिन में पेमेंट होगी। यहाँ पे 2-2 साल हो जाते हैं, पेमेंट हुई नहीं है अब तक। और ये इनका इतिहास रहा है बीजेपी लेकिन वालों का। अभिमन्यु कौर, वो तो सारी पार्टीज का है अभी। और हमने ये बात करी कि पंजाब में कौन सा सबका कर्जा माफी हो गया है। जिस मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने पहले अनाउंस किया था वो कितना कर सके अपने उस टेन्योर में। वो तो हर स्टेट का यही हाल है। तन्वी जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। मैं 200% आपकी बात पे सहमत हूं। हम किसी पार्टी की पैरवी नहीं करते, हम तो खुल के ये बात कहते हैं। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर लो, जिस रिपोर्ट के अनुसार आज गेहूं का एमएसपी 3200 रुपया क्विंटल होना चाहिए। 2007 में रिपोर्ट आती है, कांग्रेस की उस समय सरकार थी, 2014 तक ये सरकार में रहे, लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बड़े बड़े नारे देके कि पहली कलम से C2+50 के अनुसार एमएसपी देंगे। इन्होंने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हर पार्टी का जो चरित्र है वो मूल तौर पे किसान विरोधी है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई 19 है तो कोई 21 है। ओके, तो ये बात साफ हो गई। जो बंगाल में किया गया आरपी सिंह जी, वो ही अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होगा। किसान जाएंगे वहां पे और कैंपेन करेंगे अगेंस्ट योर पार्टी। उनकी मंशा राजनीतिक है, वो राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर, राजनीतिक दलों से फंडेड होकर, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, फंडेड होकर ये काम किया जा रहा है। ये कहते हैं हम नहीं आने देते। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, टिकैत साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर में बैठ कर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और मैं नहीं कर, ये तो स्पष्ट दिखता है ना, आपसे दिखी किस कैसे मैं कह सकता हूँ, कोई सुनी बात और कह रहा हूँ। तो जो बात, मूल बात जिससे भाग रहे हैं, ये जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब किसी हिंदू नेता की हत्या कराकर वहां पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब समझते हैं, ये षड्यंत्रकारी राजनीति, षड्यंत्रकारी बयानबाजी, ये दिखती है कि इनकी मंशा क्या है, ये क्या खेल खेल रहे हैं और किसके कहने पे खेल खेल रहे हैं। हमें उल्टा शक और हमें चिंता भी करनी पड़ेगी, ये किसके कहने पे क्या खेल खेला जाएगा, इन पर नजर रखी जानी चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, ये इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और इस प्रकार के षड्यंत्र को कहीं वो अमली जामला तो नहीं बनाना चाहते और उसके चलते वो भी बड़ा खेल तो नहीं कर रहे। जब ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो इनको तो जानकारी होगी ना। हम तो ओपन कह दिया, तो जानकारी लोगों तक लाइए ना, समझे कि क्या आपको जानकारी है। खेल हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, प्योर राजनीति हो रही है। हाँ। इनके मन में, किसी के मन में किसान का हित नहीं, इनके मुंह से कभी एक शब्द कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नहीं निकल सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी पंजाब की इनको फंडिंग करती है। Well, the issue is largely about the laws that have been brought in by the center right now, and that's how the conversation began. And I want to emphasize on that, Ghanshyam Tiwari, that the problem is that there has been no conversation, no attempt by either of the sides, including the government, to even hold another round of talks. So this is going to go on, and as elections come closer, it seems to be getting uglier and uglier. Good evening, Tanvi, to you, your viewers, and my fellow co-panelists. The government of India, led by Bharatiya Janata Party, is playing a very, very dangerous game on the people of the country. Whether it is the farmers, whether it is the youth, and whether it is any other matter that concerns the common man, petrol prices, diesel prices. Just look at some of the statements given by this government. I read Navbharat Times, किसान नहीं लेफ्टिस्टों के और माओवादी के हाथ में चला गया है आंदोलन. This is Piyush Goyal. We famously heard or infamy of Meenakshi Lekhi calling the farmers Mawali. There is agriculture minister of Madhya Pradesh from Bharatiya Janata Party who called the farmers and farmer leaders Dalal. So the quality of language and the kind of infamy that Bharatiya Janata Party at the top level in the government has tried to give the farmers is going to be a black spot forever in the history of Bharatiya Janata Party. This is a party who said that in 2022 farmer incomes will be doubled. The reality is every 2 years Bharatiya Janata Party is the only party in India whose income itself is doubling. Mr. Adani's income in the last 7 years would have tripled or quadrupled, as Economic Times has reported and various media channels have reported. So the one group of people which BJP famously promised that they will double the income in 7 years,
2014 to 2022, 8 years. They have not been able to double that income. They've been able to increase the input price. Every month they increase the input price, which is diesel. Every month some or other input price is increased. The common man is paying more than 200 rupees per kg of sarson, and yet BJP in Uttar Pradesh, their head of the party says महंगाई कहीं नहीं है. So BJP knows that there is only one profitable side to play this game with, which is its chosen corporate lobby. It betrayed the farmers the way this bill was passed. It betrayed the farmers the way this protest was set. More than 200 farmers have died 25 miles from Prime Minister's residence. Not one leader went. And finally, it hopes, Bharatiya Janata Party hopes, that people of India will not trust the farmers. They will trust the Hindu-Muslim hatred-filled agenda of Adityanath and leaders like that BJP is full of. We will see what plays out. Eventually, the BJP draws its legitimacy by success of their hatred agenda. But if the farm protests continue, this hatred agenda will be demolished. It is now in the hands of people that whether they want the hatred agenda of Bharatiya Janata Party to rule the country, which puts youth in But unemployment. Ghanshyam, the problem is they haven't even started with that yet in their official campaign. The farmers have. They have made it already about it. They never ended. The rise of Adityanath is not on there's not a single speech that anyone can pull out where Adityanath is preaching for peace. Not one speech. Amit Shah, as a member of parliament, writes in his bio that he's a farmer. Can RP Singh defend Amit Shah as a farmer? They make a joke of the farmer. They make a joke of every issue that concerns the common man because their hands are full with corporate money, their coffers are full, and they know that their hatredful agenda will help them sail through elections after elections. Just imagine, they lose a government in Punjab, how many governments are they able to buy? The Pegasus scandal shows that there is charges of snooping being used to manipulate government in Karnataka. So if they have money to buy out MLAs, to form governments at will, they wouldn't care whether farmers are protesting in one place or another. They know that whether they lose or win, they will be able to form the government. They have enough money, they have enough muscle. I was just going to say that there is absolutely no evidence right now of who bought Pegasus and for what purposes. If only there would be an investigation by the government, we would perhaps know the truth. But that being said, the point that Ghanshyam Tiwari has made, does it or does it not matter to the BJP that the farmers have been protesting for 1 year? Protests have gone on for 8 months without any conversation, Mr. Vijay Sardana. Is talks not the only way forward? What is the point of suspending the laws if you don't try to find a way forward? It's a very important issue which you are raising. I'm asking all the panelists, those who are opposing these laws, please find out which line is against farmer. Show us which line is anti-farmer. Because everyone is saying these laws are bad. Then what is your proposal? Which law you want this country should run by? You want the same old law where middleman was squeezing the farmers? क्या आपको वही कानून चाहिए जिसमें 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की? क्या आपको वही कानून चाहिए जिसमें आप और हम 50 रुपए सब्जी के देते हैं, किसान को 2-3 रुपए मिलते हैं? कौन सा कानून चाहिए? ये कोई नहीं बता रहा है। और साफ ये कहा जा रहा है कि कानून खराब है, लेकिन कौन सी लाइन खराब है ये कोई नहीं बता रहा। राकेश टिकैत को ये कहा गया कि आप हाथ में कानून लेके लाइन बताइए कौन सी खराब है, तो उनका मुंह बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये एक पूरा का पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि किसानों का लिटरेसी लेवल कम है। आप अगर जाके किसानों से बात करें, 90% किसान जो प्रोटेस्ट में वो कहते हैं साहब हमने तो कानून नहीं पढ़ा, जो नेता कह रहे हैं हम वो बोल रहे हैं। तो जब आपकी जो फॉलोइंग है वो अनपढ़ है, जो कानून नहीं पढ़ सकती, अगर आप उसको मिसलीड करके प्रोटेस्ट में लेके आ रहे हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? क्या इस देश के नेताओं को अपने फॉलोअर्स को मिसलीड करना चाहिए या सही डायरेक्शन दिखाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और जो लोग अपोज कर रहे हैं, मैं आज भी आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, मिरर नाव के चैनल पे हम बैठ जाते हैं, आप भी कानून ले आओ, हम भी ले आते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी लाइन खराब है। बताइए तो सही। आप बताने को तैयार नहीं है, पढ़ने को साथ में तैयार नहीं है, कानून हटा दो। आप ये कह रहे हो पूरा पार्लियामेंट, पूरा राष्ट्रपति
पूरी आपकी संसद, आपका सेक्रेटरिएट, आपका मतलब कि पूरा ऑपोजिशन, देश की सारी न्यायपालिका सब नालायक हैं। किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती। सिर्फ ये चंद किसान नेता जिनका अपना कोई राजनीतिक एजेंडा है वो सही है। Well, the दूसरा farm मेरा laws, सवाल Mr. है, Sardana, एक मिनट, आपके एक सवाल मिनट, का एक जवाब दे ढूंढ लेते हैं पहले तो। ये जो आपने सवाल उठाया है, फर्स्टली आई डोंट थिंक द एंटायर ऑपोजिशन इज ऑन द साइड ऑफ दीज फार्म लॉज, neither are all the farmers against it. There are pluses and minuses on the farm laws. कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, जो कि मेरा नाम पे बहुत एग्जॉस्टिवली डिबेट हो चुका है। और हम आज भी अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे डिबेट करने से ऑन द मेरिट्स ऑफ द लॉ कुछ नहीं बदलने वाला विजय सरदाना, बिकॉज सरकार ने डिसाइड किया कि हम ये लॉज को सस्पेंड करेंगे और बदलाव करेंगे बातचीत से। अब वो बातचीत करना भूल चुके हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जो ये हमारे किसान नेता, इनसे एक निवेदन है, जितने किसान नेता हैं अपनी सारी डिमांड एक कागज पे लिखें जी। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी है, केजरीवाल है, ममता है, समाजवादी है, जो भी है, उनसे कहें ये हमारी डिमांड है, इसके नीचे आप साइन करें। जहां पे भी आप सत्ता में हैं या आएंगे, अगर आपने इसको 1 महीने में लागू नहीं किया तो आप इस्तीफा देंगे। चाहे वो एमएसपी की डिमांड है, चाहे वो कानूनों को हटाने की डिमांड है, नया कानून आप कौन सा चाहते हैं, उसमें क्या क्लॉज होना चाहिए, आप लिखवा लें, सबसे साइन करवाएं, देश की जनता के सामने रखें कि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें समर्थन दिया है, ये हमारा चार्टर है, बीजेपी के अलावा इन सब ने हमारा समर्थन दिया है, इसलिए हम सब इनके साथ हैं, वोट इनको देंगे। एक ट्रांसपेरेंट डिस्कशन किसान नेता करें, हमें भी पता लगेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है और कौन सी वास्तव में इनके साथ खड़ी है। Well, okay, ये चीजें okay. तब सामने To begin with, for example, the Punjab government did come out with its own set of laws to counter and nullify what the center had passed that never got the approval from the center, and then everything went into suspension. एक मिनट, अब आपने जो सवाल उठाया है उसके जवाब अभिमन्यु कोहर एंड देन पुष्पेंद्र सिंह बारी बारी देंगे। अभिमन्यु कोहर फर्स्ट एंड देन पुष्पेंद्र सिंह। या सबसे पहले मुझे विजय सरदाना की इस बात पे ऐतराज है, वो हमारे बड़े हैं इसलिए हमें सम्मान करना पड़ेगा और हम करेंगे, कि वो किसानों को अनपढ़ बोल रहे हैं। जो अन्नदाता, जो जमींदार, जो किसान बिना कोई मिट्टी का टेस्ट किए बता दे कि अब ये बीज बोने लायक है या नहीं है, उसको ये अनपढ़ बता रहे हैं। यदि ये उस अन्नदाता को अनपढ़ कहेंगे तो मैं कह रहा हूं तो ये विजय सरदाना जैसे जो कृषि अर्थशास्त्री ये अनपढ़ हैं, हम इनको पढ़ा लिखा मानते ही नहीं और हम कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं, ये कॉर्पोरेट के एजेंट नहीं है, ये कॉर्पोरेट का एजेंडा रखिए। Okay. Mr. Vijay Sardana, may I request you to let him finish? One at a time, please. One at a time. 1 minute. Can I just talk to Vijay Sardana? अभिमन्यु कौर 1 मिनट। विजय सरदाना आज मेरी डिबेट में पहली बार आए हैं, so I'm just going to reiterate the rules that all the other 4 panelists know. Mr. Sardana, on this conversation, we don't talk over each other. I'll come to you. I'll give you your fair amount of time to make your point. अभिमन्यु कौर को अपनी बात खत्म करने दीजिए। कृषि कानून में क्या कहा गया है कि कंपनी और किसान के बीच में विवाद हुआ तो निपटारा कौन करेगा? एसडीएम। कौन एसडीएम निपटारा करेंगे? जो करनाल के अंदर कह रहे हैं इन किसानों के सर फोड़ दो, इन किसानों को लहूलुहान कर दो, कोई किसान यहां से आगे नहीं जाना चाहिए, यदि कोई किसान आगे जाए तो उसका सर फूटा होना चाहिए। क्या ये ऐसे एसडीएम किसानों के साथ न्याय कर देंगे? क्या ऐसे एसडीएम कंपनियों के दबाव में नहीं आएंगे? क्या ऐसे एसडीएम सरकार के पिट्ठू नहीं पड़े रहेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन कानूनों में कही गई है बात कि प्राइवेट मंडी खोली जाए। अब एक बात बताइए, बिहार का उदाहरण ले लीजिए। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है। वहां पे वो सारे 3-3, 4-4 एकड़ के जमींदार हैं। 2005 में वहां पे एपीएमसी मंडी समाप्त की जाती है और वहां के किसानों का मक्का सड़कों पे गिरता हुआ घूम रहा है, लेकिन कोई खरीदने की प्रक्रिया नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। दूसरी बात, ये बात करते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। इनको हम एक चीज बता दें
इस पूरे कानून के पीछे जो पॉलिसीज हैं जिनकी ये पैरवी करते हैं विजय सरदाना जैसे लोग, वो है फ्री मार्केट फ्री ट्रेड की पॉलिसीज। इन फ्री मार्केट फ्री ट्रेड की पॉलिसीज ने वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हाल कर दिया है। आज वहां पे किसानों का सुसाइड रेट कितना है। आज अमेरिका में एक किसान टोटल किसानों के ऊपर कर्जा 30 लाख करोड़ रुपए का है। और ये हालत जब है जब जहां वहां एक किसान को एक साल में 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। और हिंदुस्तान मुल्क जो हमारा है, इसमें एक किसान परिवार को साल में मात्र 14 से 15 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो ये बताएंगे क्या जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की, जो जवार और ईख का फर्क नहीं बता सकते, वो टीवी पे बैठ के, वो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के बताते हैं कि कानूनों में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सबसे बड़ी हैरानी और दुख की बात तो यही है। और हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, आप समय आप तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए, तिथि आप तय कीजिए, खुली बहस करेंगे आपके साथ, किसानों के बीच में करेंगे, आम आदमियों के बीच में बैठ के करेंगे। ठीक है। एक बात जो आपने कही, मुझे यही सवाल पुष्पेंद्र सिंह से पूछना है कि आप खुली डिबेट करने के लिए तैयार हैं, तो ये खुली चर्चा सरकार के साथ क्यों नहीं होती? वहां पे जब हर बार जितनी मीटिंग्स हुई, वो 11 मीटिंग्स जो पिछले साल और जनवरी तक हुई पुष्पेंद्र सिंह, उसमें सिर्फ ये कह देना कि कानून पूरे के पूरे हटाए, नहीं तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इज दैट फेयर? प्लीज 10 सेकंड का समय दीजिएगा आप, मेरा आपसे निवेदन है जी। मैं तन्वी जी बोल दीजिए। जो 11 राउंड की जो बैठक हुई, सब बैठकों में मैं शामिल रहा, अपने प्रतिनिधि मंडल जो हमारा उसका हिस्सा हूं। हर बार जब बैठक होती थी तो सरकार की तरफ से एक निमंत्रण भेजा जाता था, बाकायदा 40 सदस्यों के पास हमारे पास एक निमंत्रण आता था कि इस तारीख को आप बात करने आ जाइए। अब हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई आमंत्रण नहीं आया। प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणों में कहते हैं एक कॉल दूर है, आ जाइए, बात करने को तैयार है। अरे भाई, देश जो चलता है वो कानून संविधान से चलता है, देश भाषणों से नहीं चलता। आप एक न्योता तो भेजिए पहले। ठीक है, नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं कि अब सरकार नहीं बुला रही, क्वाइट पॉसिबल, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। वही हम भी कह रहे हैं कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मेरी बात ये है पुष्पेंद्र सिंह कि ये ऑल और नन वाला जो स्टैंड है वो तो बदलना होगा। बातचीत के लिए, डिबेट के लिए, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए ये कह देना कि नहीं पहले हटाए कानून, नहीं तो चलती रहेगी प्रोटेस्ट, ये दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ये हेल्प नहीं कर रहा। देखिए, आपकी आवाज कट गई, मैं अंदाजे से ही आपका प्रश्न उसका जवाब देना चाहता हूं जो सरदाना साहब ने भी कहा है। देखिए सरदाना साहब, अनेकों डिबेट में आप हमारे साथ रहे हैं, हमने कई बार इनकी प्लस माइनस जितनी भी थी चीजें आपके सामने रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के दबाव में आप जो है इसको अलग तरह का रंग देने की कोशिश करते हैं। इस विषय में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टडी थी जो छपी थी और उसको कोट हमने किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी थी, उसको हमने कोट किया था, क्या दुष्प्रभाव इनका है। अमेरिका में ये रीगन के जमाने में 1980 के दशक में ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, वहाँ क्या दुर्दशा हुई वो सारी चीजें बताई थी। उसके अलावा जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाला पॉइंट है उस पर हमने बहुत साफ कहा है कि भाई आपने अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा तन्वी जी के जो एयरलाइंस है उनके मिनिमम किराए इस देश में फिक्स किए गए कि इनको एयरलाइन को घाटा ना हो तो मिनिमम किराया हम दे देते हैं इनको। इसी प्रकार से एक जो बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसके ऊपर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, वो फेल होने की स्थिति में आ रही है। वो कह रही है, वो डिमांड है टेलीकॉम सेक्टर की कि भाई मिनिमम रेट घोषित कर दो, इससे नीचे कोई जो है ना जाए। तो तब आप मार्केट इकोनॉमिक्स को भूल जाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के और बड़े बड़े स्टेक यहाँ शामिल है। तो हमारा कहना यह है कि मिनिमम जो लीगल गारंटी है, मिनिमम प्राइस अगर किसान को दे दिया जाएगा तो किसान कोई ये नहीं है कि 20 रुपए की चीज को किसान 100 रुपए में बेचता है, उसे तो थोड़ा सा फायदा होता है, उसको कम से कम जीवन यापन के लिए कुछ पैसा मिल जाए तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। जो धन्ना सेठ जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है 20 रुपए का गेहूं खरीद के और 40 और 50 रुपए में आटा केवल पिसाई के बाद बेच देता है, तो उस तरह का प्रॉफिट तो किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये डिमांड हमारी जायज है, इनको कराना चाहिए। 9 महीने हो गए हैं, लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक इतना बड़ा वर्ग बैठा रहे वो उचित नहीं है। और बाद में उसमें आप हिंसा फैलाने की कोशिश करें, आप इस तरह के आदेश पारित करें, उनके ऊपर लाठीचार्ज करें, ये ठीक नहीं हो रहा है। सदा सदा किसी की सत्ता नहीं रही है, जिनकी 400 सीटें थी वो भी धराशायी हो गए थे। और जिस प्रकार से आपने कहा कि किसान अनपढ़ हैं या इनको बहका लिया गया है, अरे तो क्या 2014 और 2019 में जब इन्होंने आपको वोट दी थी तब भी मोदी जी ने अपने भाषणों के माध्यम से इनको बहका लिया था क्या? ये जनता आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आती है।
समझ लीजिए, आपको वोट दी थी, आप जो है जिम्मेदार तरीके से सरकार चलाइए और किसानों के हक में आप फैसला करिए और इनको जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाने दीजिए, अन्यथा इनसे कोई जीत नहीं पाया है। ये आपने जो पॉइंट उठाया आरपी सिंह जी, इसका जवाब दें कि जब किसान आपके फेवर में है, आपके साथ चलते हैं, आपके लिए वोट करते हैं, तो तब वो बहकाए नहीं गए, लेकिन जब वो सवाल पूछते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने ही एग्रीकल्चरल लॉज के पे प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो बहकाए गए। जो बात मैंने जहाँ से शुरू की थी उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अरुण नारायण के कपड़े फाड़कर उस पर जानलेवा हमला किसने किया था, ये अभी तक जवाब नहीं दिया। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद है, मेरी पार्टी के सांसद भी है। औजला कांग्रेस के सांसद है, मेरी पार्टी के सांसद भी है। जीरा कांग्रेस के विधायक है, उन पर 23 जनवरी को जानलेवा हमला किसने किया। पत्रकारों पर जानलेवा हमला किसने किया, इसका जवाब दे दे। ये आज जिस बात की डिबेट शुरू हुई थी कि भाजपा के लोग किसी हिंदू नेता का कत्ल करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ कत्ल होते होते बच गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्यों बच गए। नहीं होते तो शायद आज हम लोग उनके लिए कोई एक प्रस्ताव पास कर रहे होते अफसोस का, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इनके जहाँ इन्होंने घेराबंदी कर रखी है, जहाँ बॉर्डर रोक रखे हैं, वहां पर किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, उस सबकी जानकारी में किस प्रकार एक बिटिया का रेप होता है, किस प्रकार एक बिटिया की हत्या होती है, उसके बारे में कोई एक जवाब नहीं आएगा। परंतु मैं फिर वापस से जो, क्योंकि अब कई सारे प्रश्न उठे, स्नूप गेट की बात हो गई जिसका आपने जवाब दे दिया, अच्छी हुई बात आपने कर ली। परंतु एक बात तो बता दीजिए मेरे को कि ये जो मंडी वाला मामला है, ये मंडी का जो कानून है ये लागू कौन करेगा। और क्या बिहार में प्राइवेट मंडियां थी तो वहां पर बिहार में कब की प्राइवेट मंडी है, बता दीजिए मेरे को। बिहार में कौन सी प्राइवेट मंडी बनी आज तक। आप तो बिहार की बात करते हैं, और मैं अभी आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये मंडी बनाना ना बनाना, मंडी पे टैक्स कितना लगेगा, ये पूरी की पूरी छूट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास नहीं है। सेंटर से प्रस्ताव देने की मंडियां को छोड़ दी जाए, नई मंडियां आ सकती है तो आने दी जाती है, परंतु वो मंडी स्टेट गवर्नमेंट उसको अपनी रिकॉग्नाइज करेगी, एक्नॉलेज करेगी, नहीं करेगी, तो उनका काम है। उनके टैक्स कितना लगेगी, पुरानी मंडी जितना लगेगी या नई मंडी जितना लगेगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। और एसी की बात करते हैं कि एसी स्टूडियो में बैठे हैं, अभी फोटो देखी थी थोड़े दिन पहले, टिकैत साहब कितने बढ़िया एसी टेंट के अंदर सो रहे थे, सबने देखी, सारे देश की सारी दुनिया देखी थी। अब बोलो किसान नहीं सो सकता, अरे भैया हम कब मना कर सकते हैं, परंतु सर एसी पर प्रश्न मत उठाओ ना कि आप कि एसी स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं, आप भी एसी सेंटर में बैठकर आप प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, सबको जानकारी है। और एक बार बार आती है वो है कि कौन से कहाँ बात करें, कैसे बात करें। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, मेरा निवेदन है आप डिबेट के बाद वो नंबर इनको आप दे दीजिएगा, एक फोन कॉल करेंगे, किसान सारे नेता भी, हम ये किसान नेता है, हम बात करना चाहते हैं, बातचीत शुरू हो जाएगी। तो नंबर मैं आपको बात ले देता हूँ, इनके मन में हो, क्योंकि 11 राउंड 12 राउंड बात, तो उसमें से इनकी तरफ से एक प्ले कार्ड लेकर खड़े रहे, हम बातचीत नहीं करेंगे। और एक जो बार बार आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, ये बता दें पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से लागू है, क्या पट्टे पर जमीन पंजाब में नहीं करती। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जहाँ में रहते हैं वहां से मुझे मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कल मुझे मैं खुद आऊंगा, मिलूंगा। मिस्टर आरपी सिंह, योर क्वेश्चन, मैं एक मिनट बात करूं, मैं बात पूरी करूं, मैं टोका नहीं, आप मुझे 6 के वर्सेस इंक्लूडिंग यू, मुझे अकेले को जवाब देंगे ना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने पटियाला से क्या लोग आए हैं, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पेप्सिको की चल रही है, उस वहां से तो लोग नहीं है पेप्सिको की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते हुए। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी लागू हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले थी। हमने उल्टा किया, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में नहीं थी, हमने जो ठेकेदारों के हित में थी, हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने सारा मामला किसानों के हित में कर दिया, उसकी चर्चा नहीं होगी। और मैं एक क्योंकि आपने मुझे टोक दी, मैं आपकी बात कहता हूँ, जिस दिन आपकी मर्जी हो, मैं खुली चैलेंज दे रहा हूँ, जब आप बोलेंगे आप अपने चेहरों में बुला लीजिए, इनमें से जिस किसान नेता बुलाना चाहे बुला लीजिए, हम एक बिंदु पर डिस्कशन करके डिबेट करेंगे। I would love to do that, Mr. RP Singh. If only having open debates here would resolve the actual deadlock, then the point is, Mr. RP Singh, at some point the center has to move. The center has to move. आप उनको कितना भी उन पे सवाल उठा लीजिए, कितने भी लेबल्स लगा लीजिए, जो भी उनके प्रोटेस्ट को जिस भी मोटिव से लिंक करना है कर लीजिए,
But it is the same central government that acknowledged these protests, that legitimized these farmer leaders when it decided to have those conversations with them, that suspended the farm law, saying, okay, we will talk and we will see what can be done. And after that simply stopped and has not gone back. You can't recognize them, legitimize them one day and the next day completely forget and say, no, you're all politically motivated and there is no credence to what you're saying. I am not on any of the two sides. I fear that the protests are going completely political. In the next couple of months, they're going to get ugly as states like Uttar Pradesh and Uttarakhand prepare for elections. In the state of Haryana itself, it's become highly political. And the kind of comments that Rakesh Tikait and many others are making are not good for peaceful protests, which are simply about the farm laws. The onus is on both sides to restart conversation. But the bigger responsibility is on the central government to call the farmer leaders again, sit across the table and have a conversation. That's the only way to douse this fire. Thank you for joining us.